I'm again here with you with a new video, a video of English on the topic note making. On the topic note making. It's a very important topic for class 11th and 12th in CBSE board. Class 11th and 12th. Actually, note making carries 8 marks. 8 marks. 8 marks is a very important figure, right? And what is note making? It is an advanced writing skill. Advanced writing skills due to the knowledge explosion. It's very important to note down a very large information, very large long questions, very large materials to note down them into the form of notes, into the forms of main points. Right? It's advanced writing skill nowadays. Important. It's very important because it's not so much difficult to remember the main points, but it's the very difficult to remember the large information and the long answers and the whole book. So the information which is heard or read by us, right? It should be noted down in notes. That the process is known as note making, at least in the form of main points. It's a complex activity. It's a complex activity, but it's important. So it's our responsibility to be perfect in that form, to be perfect in making notes. The use of abbreviations and symbols. The use of abbreviations and symbols makes our notes more compact and perfect. Right? It's a complex activity, so it's our responsibility, right, to know it in proper manner, right? Because it is beneficial for a board examination, right? Also in our coming future life. Okay, students, it's very important. Note making carries 8 marks and it consists 2 questions. First one, making notes, and another summary with summary. Both questions consist 4 marks. First, making notes, 2 marks reserved for notes, 1 for title and 1 for abbreviation. Abbreviation is the short form of a word, a complex word, a compound word, right? And summary consists of 4 marks, right? Summary carries 4 marks, and summary should be 1/3 to 1/2 only, 1/3 to 1/2. The maximum limit should be half of the given passage. There you will get 2 type of passages. 2 type of passages in bold questions: factual passage and discursive passage. Factual and discursive passage to make the notes, right? So whenever you make the notes, right, identify the main points. Read the passage very carefully. But quickly, but carefully, right? Notes should be short. Prepositions, conjunctions, articles should be omitted. You should use phrases, not a complete sentence in notes. Whenever you make notes, headings, subheadings, 8 मार्क्स सिक्योर करता है. 8 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा. 8 मार्क्स का पूछा जाएगा. 11th के लिए इम्पोर्टेंट है, 12th के लिए इम्पोर्टेंट है. 12th बोर्ड में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है. बहुत इजी क्वेश्चन, बस कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए. प्रॉब्लम होती है लोग कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर पाते. नोट मेकिंग इज अ प्रोसेस टू कंसाइज अ लॉन्ग कंपोजिशन. जो लॉन्ग अभी तक आप करके आए,
लास्ट टाइम में आपने किया है कि आर्टिकल में हिंट्स दी रहती थी, आपने देखा होगा राइट। उस हिंट्स को क्या करते थे आप, एलेबोरेट करते थे, उस हिंट्स को डिस्क्राइब करते थे, पूरा बड़ा लिखते थे, ठीक है। एसएसटी में आप हेडिंग्स याद कर लेते थे, उसके दम पर पूरा लॉन्ग क्वेश्चन लिख देते थे राइट। ये क्या करना है, कंसाइज करना। कंसाइज वर्ड आप जानते हो कंप्यूटर में, मोबाइल में सब यूज होता है, ठीक। किसी चीज का जो उसका एमबी है, ठीक है, जो उसका स्पेस है, उसको क्या करना, कंसाइज कर देना, छोटा कर देना। तो यहाँ पर एक कंपोजिशन लाइन दिया होगा, उसको छोटा करके हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स के बेस में लिखने को क्या कहा जाता है, नोट मेकिंग कहा जाता है राइट। इसका क्लासिफिकेशन क्या है, 5+3 का क्लासिफिकेशन था, ठीक है। समटाइम्स इट 4+4 का भी हो जाता है, ठीक है। वही उसको थोड़ा चेंज कर दिया। 1 मार्क्स का टाइटल है राइट, 1 मार्क्स का टाइटल हो, 3 मार्क्स के हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स होंगी राइट, जो आप बनाएंगे, ठीक है। 1 मार्क का एब्रिविएशन होगा, क्या होगा, एब्रिविएशन राइट, एंड 3 मार्क्स की समरी होगी। इट्स अ होल प्रोसेस। ये पाइपाजी में था, इसमें थोड़ा सा स्लाइड में एडिट कर दिया है, ठीक। इन दोनों को जोड़ के 4 मार्क्स का कर दिया और ये दोनों जोड़ करके 4 मार्क्स का, ठीक। ये इसका जो है अलग अलग वो है, इस तरीके से मार्क्स मिलेगा, ठीक। अब बनाना कैसे है, सबसे पहले क्या है, टाइटल। आप टाइटल डाल देंगे, लेकिन इसको सबसे पहले लिखेंगे। टाइटल आप डाल देंगे, लिखेंगे, क्योंकि टाइटल तभी लिखा जाना चाहिए जब आप पूरा का पूरा कंपोजिशन पढ़ लें, ठीक है। तो आपने डाल दिया, ठीक। अब आपने फर्स्ट पैरा पढ़ा, ठीक। इसके बाद क्या करना, हेडिंग सब आपने पढ़ा, ठीक है। अब जब पढ़ा तो उसमें क्या हेडिंग आई, हेडिंग बनेगी, ठीक। हेडिंग जो भी आप बनाएंगे उसमें वर्ब का यूज नहीं होना चाहिए राइट। नो नीड टू राइट डाउन अ कंप्लीट सेंटेंस, कंप्लीट सेंटेंस नहीं लिखना, ठीक है। कंप्लीट सेंटेंस नहीं लिखना। कंप्लीट सेंटेंस नहीं लिखने का मतलब क्या है, आप वर्ब का ओमिशन कर दीजिए, वर्ब को ओमिटेड कर दीजिए। वर्ब जब आप नहीं लिखेंगे तो सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा, बिकॉज विदाउट वर्ब देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ एनी सेंटेंस। बिना वर्ब के किसी भी सेंटेंस का कोई एग्जिस्टेंस नहीं। वर्ब नहीं लिखेंगे। कोई भी आया है, सपोज करिए, ठीक है, पॉपुलेशन पे आ गया हो या पॉल्यूशन पे आ गया हो, ठीक है, तो आपने लिख दिया, ठीक है, मान लीजिए पॉपुलेशन पे आ गया, पॉपुलेशन। और पहली लाइन लिखी, पॉपुलेशन इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ द वर्ल्ड। मान लीजिए लिखा है यहां से, तो आपने क्या लिखा, पॉपुलेशन इज, एक वर्ड कर दिया, पॉपुलेशन, ठीक है, द बिगेस्ट प्रॉब्लम, द बिगेस्ट प्रॉब्लम राइट, ठीक। ये हो गई, क्या हो गई, ये हेडिंग हो गई, ध्यान दिया, ठीक। वर्ब कहीं नहीं लिखा। हेडिंग में, किसी भी हेडिंग में, देखिए खास बात यही है कि हेडिंग सब हेडिंग बनाना है, उसको जो है डिस्क्राइब नहीं करना, उसके अंदर कुछ नहीं लिखना। जो आप लोग डिस्क्राइब करने लगे, बहुत लोग डिस्क्राइब करते हैं, वो गलत मेथड है, मार्क्स आप जो है गेन नहीं कर पाएंगे, मार्क्स आप सिक्योर नहीं कर पाएंगे। सिर्फ आपको, अभी तक हम हेडिंग से पूरा लॉन्ग कंपोजिशन लिखते थे, अब कंपोजिशन को हमें हेडिंग बेस पे लिखना है कि हम हेडिंग पढ़ के समझ लें कि कंपोजिशन का एसेंस क्या है, ये क्या कहना चाहता है, ठीक। हर हेडिंग में आप ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि 3 to मैक्सिमम 7 वर्ड्स होने चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। वर्ब नहीं हो, वर्ब नहीं हो, क्लियर। वर्ब क्या होता है, सुनो, इजेमारी नहीं होगी, बहुत जगह ये आ जाएगी, ठीक है, ये भी वर्ब है, ठीक है, जो काम करते हुए दिखाई दे जाएगी वर्ब, ये माने देना, ठीक। और हिंदी में इनका, तो हिंदी जब निकालोगे तो सबके लास्ट में ना आएगा, ठीक। मेकरा, हंसाना, लॉ, हंसना, ये सब वर्ब, ये यूज नहीं होगी। इजेमार बार है, इनका भी यूज नहीं होगा, उसकी जगह हाइफन लगा सकते हैं, लगा सकते हैं, ठीक है, सेमी कॉलम लगा सकते हैं, इस तरीके से, ठीक है। सिंपल मेथड में बता रहा हूं, एक ट्रिक है जो आप यूज करोगे तो आप 5 to 6 मार्क्स गेन करेंगे आउट ऑफ 8, क्लियर। ये होगा लिखने का मेथड, ध्यान दीजिए, ठीक। किस तरह लिखना, हेडिंग के बाद क्या पड़ेगी, देखिए मैंने इसके सीध में नहीं डाला, ये ध्यान दीजिएगा, मैंने इसके ठीक नीचे नहीं डाला, क्या है, थोड़ा सा स्लाइड करिए, अलग लिखना, ध्यान रखिए, सब
पॉपुलेशन द बिगेस्ट प्रॉब्लम। अब यहां आ सकता है रीजन्स ऑफ ग्रोइंग पॉपुलेशन। ये क्या हो गई? इस हेडिंग की पहली सब हेडिंग। हर हेडिंग के अंतर्गत 2 to 4 सब हेडिंग आप बनाएंगे। कितनी बनाएंगे? 2 to 4। 2 से 4 सब हेडिंग होनी चाहिए। 2 से कम नहीं, 4 से ज्यादा। ध्यान दीजिए, हर हेडिंग जो आप फाइंड आउट करेंगे, ये 3 to 8 लाइन के बीच में एक हेडिंग आप बनाएंगे। ठीक है, 3 to 8 लाइन्स के बीच में आप क्या करेंगे? एक हेडिंग फाइंड आउट करेंगे, एक हेडिंग निकालेंगे और बनाएंगे, जो आपको पहली या दूसरी लाइन में ही मिल जाएगी कि किसके बारे में लिखा गया है। ठीक, क्लियर हुआ? अब रीजन्स ऑफ ग्रोइंग पॉपुलेशन आ गया। ठीक है, अब इसमें आ सकता है, अब ये क्या है? ये सब हेडिंग, सब हेडिंग। इस हेडिंग के अंदर सब हेडिंग और उसकी सब हेडिंग। ये जरूरी नहीं है कि ये हर सब हेडिंग में बनाई जाए। ये जरूरी नहीं है कि ये सब हर जो है ये सब हेडिंग है, इसको क्या कहा जाता है? सब हेडिंग। राइट, क्लियर हो गया? और दैट इज हेडिंग। ठीक है, ये सब, ये क्या होगा? ये सब हेडिंग। ठीक है, सब हेडिंग हर सब हेडिंग में हो ये जरूरी नहीं है। जो इससे रिलेट कर रहा हो, एक पॉइंट और है, इससे रिलेट कर रहा है, इससे नीचे है, तो वो बनाई जाएगी। राइट, सब। ठीक है, रीजन्स ऑफ ग्रोइंग पॉपुलेशन क्या हो सकता है? लैक ऑफ एंटरटेनमेंट। अब देखिए, हमने इस वर्ड को एब्रीविएट कर दिया। क्या कर दिया? एब्रीविएट कर दिया। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, एब्रीविएट करने के 3 मेथड्स हैं। यहां पर 1 मार्क्स से एब्रीविएशन मैंने लिखा है। राइट, एब्रीविएट करने के 3 मेथड है, वो मैं बताता हूं। एक मेथड मैंने यहां यूज किया, राइट, इंटरटेन्स। ठीक, क्लियर? अब ध्यान दीजिए, इसके नीचे अभी मैं कुछ नहीं लिख रहा हूं, इसके नीचे आ गया। इसके नीचे भी कुछ नहीं लिखा। लिखने का मेथड देखिए, हेडिंग के नीचे हेडिंग का पॉइंट पड़ेगा, सब हेडिंग के नीचे सब हेडिंग का पॉइंट पड़ेगा, सब हेडिंग के नीचे सब हेडिंग का पॉइंट पड़ेगा। लीनियर और नॉन लीनियर मेथड है, 2 मेथड है नोट मेकिंग का। ये सबसे पॉपुलर मेथड है और अच्छा मेथड है, इजी मेथड, सब कुछ क्लियर समझ में आता है। एक मेथड ये भी है। ठीक है, लोग इस तरह से भी प्रीफर करते हैं, कुछ बुक्स में आपको मिल जाएगा। एक कुछ टीचर्स भी प्रीफर करते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा बड़ा हाउस हो जाता है। ठीक है, कि आपने क्या किया कि पहले इस जगह सेंटर जगह टाइटल डाल दिया। क्या डाला? टाइटल डाल। ये फिगर बेस्ड चलता है। ठीक है, अब क्या किया आपने? यहां पर आपने हेडिंग डाल दी। क्या डाल दी? हेडिंग डाल दी। ठीक, अब सब हेडिंग, फर्स्ट सब हेडिंग, सेकेंड सब हेडिंग, ठीक है, थर्ड सब हेडिंग, ठीक है, उसकी सब हेडिंग है, फिर इसमें क्रॉस करके सब हेडिंग, और हर चीज का अलग फिगर बना देना। टाइटल का बड़ा बना देना, ठीक है, स्क्वायर बना दिया, फिर जो है ट्राइंगल बना दिया। ठीक है, तो ये एक ये भी मेथड है, लेकिन इसमें पेज भी भर जाता है और बहुत बार क्लियर भी नहीं हो पाता नीचे, उसमें हर चीज क्लियर नहीं होता। ठीक है, सब लोग वो प्रीफर करते हैं, मैक्सिमम लोग 95% लोग वो मेथड प्रीफर करते हैं, और वो सही मेथड भी है, क्लियर समझ में आता है। ठीक है, अब यहाँ पर आपने जैसे ये सेकेंड हेडिंग हुई, ठीक है, फिर इसके इस तरह से करिए। ठीक है, एक ये भी मेथड है, और एक ट्री फॉर्म का भी मेथड यूज किया जाता है, एडॉप्ट किया जाता है। कौन सा फॉर्म का? ट्री फॉर्म। ट्री फॉर्म क्या करते हैं कि आपने एक टाइटल डाला, राइट, अब उस टाइटल की आपने जो भी जितनी भी हेडिंग्स बनाई, 1 2 3 4 है, ठीक, अब उनकी जितनी भी सब हेडिंग बनाई। एक ये भी मेथड दैट इज नोन एज ट्री फॉर्म। ठीक है, लेकिन प्रिफर वो किया जाता है, तो अब ये ध्यान रखें। ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं और कोई बात नहीं कर रहे। ये ध्यान दीजिए, इंडिकेशन कहां से अब आ गया। अगला पॉइंट, लैक ऑफ एंटरटेनमेंट। यहाँ पर एक पॉइंट डाल दिया, यदि इससे और पॉइंट रिलेट होंगे तो उनको हम सब हेडिंग नहीं दिए। बहुत बार आपने देखा होगा कि कोई चीज डिस्क्राइब की गई हो, फिर अगली लाइन में उसी के अंदर और जाके डिस्क्राइब किया कि इसके रीजंस क्या है।
लैक ऑफ एंटरटेनमेंट है, ठीक है, लैक ऑफ एजुकेशन है, ठीक है, लैक ऑफ वेल्थ पावर या पॉवर्टी है, तो सब के सब आप हेडिंग बनाएंगे, एक ही नहीं लिखेंगे, आप और भी लिखते चले जाएंगे। 1.1.2 ठीक है, पॉवर्टी, ठीक है, 1.1.3 यदि है तो लिखिए, जबरदस्ती नहीं बनाना है, सब हेडिंग बहुत फोर्सफुली नहीं बनाना, यदि हो तो कामा लगा के बहुत सारे लिखे हुए, उन सबको अलग अलग पॉइंट पे लिखिए, ठीक है। क्या है? लैक ऑफ एजुकेशन या इलिटरेसी, ठीक है। अब देखिए एजुकेशन को हमने एब्रीविएट कर दिया, एजुकेशन को एब्रीविएट, जो वर्ड्स जो है कंपाउंड वर्ड्स होते हैं, कंपाउंड वर्ड्स माने जो वर्ड दो या दो से तीन वर्डों से एक वर्ड से ज्यादा वर्ड से मिलके बने होते हैं, दैट इज नोन एज कंपाउंड, लेटर कंपाउंड वर्ड, ठीक है। कंपाउंड वर्ड होते हैं तो उनका बेसिक जो एक मेन होता है उसको हमने ले लिया और पॉइंट लगा दिया, मतलब हमने वही खत्म कर दिया, पॉइंट लगाने का मतलब उसके आगे के लेटर्स लिखने की जरूरत नहीं। सेकंड में बताया मैंने, ठीक है। अब क्या आ गया? इसके इफेक्ट्स ऑफ क्या आ गया? मान लीजिए इफेक्ट्स ऑफ ग्रोइंग पॉपुलेशन, ठीक है। पॉपुलेशन को भी इस तरह से हम लिख सकते थे जिस मेथड से लिखा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, जिस वर्ड को हम एक तरह से एब्रीविएट करेंगे, ठीक, वो जितनी बार लिखा जाएगा उसको उसी तरीके से लिखा जाएगा। यदि यहां भी पॉपुलेशन ऐसे लिखते तो यहां भी इस तरह से लिखते चले जाते, ठीक है। यहां हम क्या कर रहे हैं, दोनों में आप समझिए कि कुछ लेटर्स को हम ओमिटेड कर रहे हैं, उनको ओमिशन कर रहे हैं, उनको हटा रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, और लास्ट वाला लेटर फिर दोबारा लिख लेंगे। तो क्या करेंगे? ऊपर कामा लगाएंगे, ऊपर कामा लगाएंगे, लास्ट वाला बनाएंगे, ठीक है। दूसरा मेथड कि जब कोई कंपाउंड वर्ड आया है, उस कंपाउंड वर्ड का मेन वर्ड हमने लिखा और फिर क्या लगा दिया? पॉइंट, ठीक, ये आ गया। इफेक्ट्स ऑफ पॉपुलेशन आ गया। अब फिर इसके आगे इस तरह से कोई चीज दी गई होगी, हमने लिख दिया, ठीक। अब नेक्स्ट हेडिंग मान लीजिए दिया गया हो, अब ये हेडिंग के नीचे हेडिंग डाला मैंने, ठीक है, सब हेडिंग के नीचे सब हेडिंग डाला, सब हेडिंग के नीचे सब हेडिंग डाला। ये बहुत इंपॉर्टेंट है लिखने का मेथड, ये 1 मार्क्स कंटेन करता है, लेकिन ये गलत हो गया तो पूरा के पूरे का आपका इंप्रेशन खराब हो जाता है, ठीक है। वो आप कितनी भी अच्छी हेडिंग सब हेडिंग बनाए हो, 8 मार्क्स में वो यहाँ पर ये 3 मार्क्स की है हेडिंग सब हेडिंग्स, ठीक है, आपको 3 मार्क्स में 1 मार्क्स से ज्यादा नहीं देगा, ठीक है। समरी में मार्क्स डिडक्ट कर लेगा, क्योंकि समरी का कोई क्राइटेरिया नहीं कितने मार्क्स दिए जाने चाहिए, ठीक है। तो ये मैथड जरूर ध्यान रखें, ठीक, क्लियर, समझ में आएगी मैथड, दोनों गलती नहीं होनी चाहिए। अब आगे जैसे इफेक्ट्स ऑफ ग्रोइंग पॉपुलेशन इन इकोनॉमी, कंट्री इकोनॉमी आ जाए, कुछ भी आ जाए, ठीक है, लाइक दैट। ये हम बता रहे हैं लिखने के लिए, सोच के कोई वो नहीं है कि किस तरीके की चीजें आएंगे और किस तरीके से लिखेंगे। फिर इसका क्या होगा? 2.1 2.1 मीन्स सेकेंड हेडिंग की फर्स्ट सब हेडिंग, क्लियर, सेकेंड हेडिंग की फर्स्ट सब हेडिंग, राइट, सेकेंड हेडिंग की सेकेंड सब हेडिंग आ जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद यदि इसका कोई पॉइंट दिया गया होगा तो सेकेंड हेडिंग की सेकेंड सब हेडिंग की फर्स्ट सब हेडिंग, क्लियर। इस मेथड से लिखा जाएगा, इज द बेस्ट मेथड टू नो। टाइटल कभी भी 3 to 5 वर्ड से नीचे आप नहीं लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। हेडिंग मैंने कहा 3 to 7 वर्ड्स आ सकते, सिंगल वर्ड सब हेडिंग में सिंगल वर्ड आ सकता है, ठीक है, एक सिंगल वर्ड भी आ सकता है, सिंगल से लेकर के आप 4 या 5 वर्ड्स तक भी जा सकते हैं। बस शर्त वही है, कंडीशन वही है कि कंप्लीट सेंटेंस नहीं लिखना है। क्या नहीं लिखना? कंप्लीट सेंटेंस नहीं लिखना। और उसका बेस्ट मेथड मैंने बता दिया कि सिर्फ वर्ब को ओमिटेड कर दीजिए, वर्ब को हटा दीजिए, ठीक, वर्ब हटा करके आप यूज करिए, सिर्फ कॉलम यूज करिए, ठीक है। और मैंने बताया कि जयमाल वाजबार है, फिर इस तरह की जो चीजें आती हैं, ठीक है। बहुत सेंटेंस डोंट से शुरू होते हैं, किससे शुरू होते हैं? डोंट से। तो ये मेन वर्ब नहीं, आप यहाँ यूज कर सकते, ये इंपरेटिव सेंटेंस है, ठीक है। आ जाए कीप साइलेंस, कीप साइलेंस, ये चलेगा, ठीक, ये एक्सेप्टेबल, ठीक है। डोंट यूज प्लास्टिक बैग्स, ठीक है,
राइट, ये चलेगा। बीच में यहाँ चाहिए सब्जेक्ट के बाद वर्ब नहीं आना चाहिए, ठीक, सब्जेक्ट के बाद वर्ब नहीं। ध्यान दिए, बात समझ में आया कुछ? डन लोगी। अब तो पूरा बना जाए, पूरा आपने बना दिया, ठीक, इन्हीं में आपको एब्रिविएशन यूज करना है। क्या यूज करना है? एब्रिविएशन। ये यूज किए गए एब्रिविएशन, यहीं पर आपको एब्रिविएशन यूज करना है, ठीक। अब टाइटल दिया है, ऊपर हेडिंग डाल दी, अब टाइटल की क्या दिया था टाइटल, ठीक है, टाइटल में आप आ सकता है, ठीक है, बैड इफेक्ट्स ऑफ ग्रोइंग पॉपुलेशन। ठीक, ध्यान दीजिए, जब भी हम टाइटल डालेंगे, टाइटल के बीच में कोई प्रीपोजिशन या आर्टिकल आ रहा है, आर्टिकल तो आप जानते हैं सी एन का, राइट, प्रीपोजिशन ऑफ, टू, फ्रॉम, ये, तो उसका फर्स्ट लेटर स्मॉल होगा, उसका फर्स्ट लेटर क्या होगा? स्मॉल। उसको छोड़ के एक्सेप्ट दें, उसको छोड़कर ऐसा हार सकता है, राइट, जब पूरा कंप्लीट हो जाए। यहाँ कीवर्ड्स कितना है? यहाँ मेन वर्ड्स। कीवर्ड्स कौन से? कीवर्ड्स कौन से? जो हम एब्रिविएटेड कर रहे हैं, कीवर्ड्स लिखे जाएंगे, और जिस वर्ड को हमने एब्रिविएटेड किया वो मेन वर्ड में लिखा जाए। क्लियर हो गया? ठीक है, ये सब खत्म होने के बाद, और इनकी लिमिट कितनी होनी चाहिए? इनकी लिमिट कितनी होनी चाहिए? 4 to 8। 4 एटलीस्ट लिखने को ही आते हैं, तो उसमें मेंशन होता है एटलीस्ट 4। 4 से नीचे नहीं करेंगे, 4 से आपने नीचे कर दिया तो बेकार, और 8 से ज्यादा नहीं जाएंगे। बहुत बार मैंने देखा है लोग 3 पेज की केवल एब्रिविएशन लिखे, 1 मार्क्स मिलना है। कितना मिलना है? 1 मार्क्स ही क्यों करना है, राइट। तो 3 पेज का कोई नीड नहीं है, ठीक है, सिर्फ 4 to 8 आपको लिखने, और उन्हीं वर्ड्स को लिखना है तिवारी जी, उन्हीं वर्ड्स को लिखना है जिनको आपने यहाँ पे एब्रिविएट किया हो। विशाल, उन्हीं वर्ड्स को लिखना है जिनको आपने एब्रिविएट किया है। बहुत बार देखा मैंने, मैक्सिमम टाइम ये देखा कि लोग यहाँ नहीं लिखते, लास्ट में ये बना देते, मार्क्स आपको मिलेगा नहीं, आप ये नहीं कर पाएंगे मार्क्स। जिनको आपने यूज किया होगा हेडिंग, सब हेडिंग या सब हेडिंग में, उन्हीं को लिखना है। इनकी मैक्सिमम लिमिट 8 है, 8 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और 4 से कम नहीं होना चाहिए, आपको 1 मार्क्स मिलेगा। क्लियर है अरमान? ठीक, हर हेडिंग के सामने नहीं बनाना, जब सारी हेडिंग आप बना जाए, और किसी भी कंपोजिशन में जो भी आया हो उसमें हेडिंग की लिमिट क्या है? 3 to 6। 3 से कम हेडिंग नहीं होनी चाहिए, और 6 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ये है 3 to 6। पूरे जो है पैसेज में 3 to 6 हेडिंग्स होंगी, हर हेडिंग में 2 से 4 2 to 4 सब हेडिंग्स होंगी, ठीक है, और हर एक हेडिंग में किसी एक सब हेडिंग की आप सब हेडिंग बनाए, किसी एक, बस सबकी नहीं बनानी, मतलब एक हेडिंग में एक ही सब हेडिंग, सब हेडिंग की बात कर रहा हूं, सब हेडिंग की बात नहीं कर रहा हूं। ध्यान दीजिए, पूरे पैसेज में 3 to 6 हेडिंग्स, राइट, हर हेडिंग में, ईच हेडिंग में 2 to 4 सब हेडिंग, और किसी एक में ये बन रही है, तो नहीं बन रही तो कोई जरूरत नहीं, ये जबरदस्ती नहीं है। हेडिंग तक की जो नीड है ये जबरदस्ती नहीं, यदि बन रही है तो किसी एक में आप जो है सब हेडिंग बना दीजिए, जो 1 2 3 जो भी बन रहे हैं, बस हर उसमें नहीं बनाना। ये तुम कहते हो पहली फर्स्ट जो हेडिंग की सब हेडिंग 3 बनी, तो फर्स्ट हेडिंग की सेकंड सब हेडिंग में 3 बनेगी, ऐसा नहीं। देखने का मेथड आपको पता हो गया ना, किस तरीके से पॉइंट लगाना है, कहाँ क्या लगाना है, और जब पूरा आप कंप्लीट कर जाएंगे तब आपको ये टेबल बनानी है, एक एब्रिविएटेड वर्ड्स की, जो 4 to 8 होगी, 4 से कम नहीं होनी चाहिए, 8 से ज्यादा नहीं करिए, और इनका इस्तेमाल यहाँ करिए, ठीक, क्लियर। इसके बाद समरी, हाँ, इसके बाद समरी है। समरी क्या है? 50 पूरे आप पैसेज को पढ़ चुके पूरा, ठीक, अब उसको बंद करके रखिए, उसको बंद करके रखिए, आपके दिमाग में जो बचा है उसको अपनी ओन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके लिखिए, दैट इज द बेस्ट समरी, और उसमें जो एब्रिविएटेड वर्ड्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। एब्रिविएटेड वर्ड्स में आप साइन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पॉजिटिव आया है इस तरह से पॉजिटिव लिखा जा सकता है, राइट, निगेटिव वर्ड आया इस तरह से निगेटिव लिखा जा सकता है, अपवर्ड्स, डाउनवर्ड्स, राइट, इस तरह से लिखा जा सकता है, ठीक है। एंड का तो आप जानते ही हैं, डू नॉट का डोंट आप जानते ही हैं, ये लिखा जा सकता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, एक चीज और, जब यहाँ पर किसी वर्ड को आपने 3 बार एब्रिविएट किया तो यहाँ पर एक ही बार लिखिए इस टेबल पे, वहां पर 3 टाइम्स नहीं,
वहां पर एक ही बार लिखे, राइट। और इस तरह के जब आपने एब्रीविएशन किए हैं, ये बहुत सीधी एब्रीविएशन माने जाते हैं। और आपके इनके बिना 8 वर्ड हो रहे हैं, 8 वर्ड्स हो रहे हैं, तो उनको लिख दीजिए, इसको छोड़ दीजिए। ये सीधी एब्रीविएशन है, ये बेसिक, ये तो ठीक है, ये तो क्रूशियल है, ये जनरल है, सब लोग यूज करते हैं, ठीक है। दो मेथड बताया एब्रीविएशन करने की, कि मेन वर्ड लिख दीजिए, पॉइंट लगा दीजिए। दूसरा मेथड बताया कि लास्ट के जो वर्ड्स हैं वो कुछ लेटर है वो ओमिटेड कीजिए, ऊपर कामा लगा दीजिए। एक और मेथड बताया मैंने, जैसे कॉन्टेक्स्ट वर्ड आ जाए, राइट, तो आप क्या करेंगे, आप जो भी वॉवेल्स हैं उनको ओमिटेड कर दीजिए। ये भी एब्रीविएशन है, वॉवेल्स आप निकाल लीजिए, राइट, AEIOU वॉवेल्स आप निकाल दीजिए, दैट इज आल्सो एब्रीविएशन। तो ये भी इजी मेथड है, ठीक है, ये तो सबसे इजी मेथड है, वॉवेल्स खत्म करना है, एब्रीविएट करना, ठीक है। कोई डिजिट आ जाए 100 था गई तो आप इस तरह से लिख दीजिए, ये भी एब्रीविएशन में एक्सेप्टेबल है, राइट। इतने मेथड है एब्रीविएशन। समरी मैंने बताया, ठीक है, कि आप पूरा पढ़ चुके होंगे, उसको रख दीजिए, जो आपके माइंड में उसको ट्रांसलेट कर दीजिए, ठीक है। लेकिन सीबीएसई में बहुत बड़ी प्रॉब्लम ट्रांसलेशन की, वही आ रही है तो क्या दिक्कत है। तो भी भैया सबसे मेन बात क्या है, जो आपने मेन पॉइंट्स लिखे हैं वहां पर उन्हीं लाइन्स को आप कॉपी कर दीजिए, ठीक है, इसी में 2 मार्क्स मिलेंगे। लेकिन समरी ध्यान दीजिए 30 to 50% के बीच में होनी चाहिए, 50% से ज्यादा ना हो, 30% से कम हो, राइट। ये 10 लाइन्स का आया है कंपोजिशन, 10 लाइन पेपर भी हो सकती है, वो आप लिखेंगे तो उत्तर नहीं पहुंचेगी, ठीक है, मतलब आप उसमें अपने पेज में 10 लाइन लिखेंगे, ठीक। तो 50% से ज्यादा नहीं लिखना है, उसको बेस्ट समझिए, मतलब मेन पॉइंट्स उतार के लिखिए, उतार के लिखिए, ठीक। बस फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन आप अवॉइड करेंगे। फर्स्ट पर्सन का मतलब, फर्स्ट पर्सन का मीन, राइट, आई एंड वी की फैमिली, आई एंड वी की फैमिली दैट इज नोन एज फर्स्ट पर्सन। आई, मी, माई, माइन, वी, अस, आर, आर्स, इनको अवॉइड करेंगे। और यू की फैमिली को भी अवॉइड करेंगे, ठीक। यू, योर, अब थर्ड पर्सन में लिखेंगे, ही, सी, दे, इट, हु, विच, हुज, इसमें लिखेंगे, किसमें, थर्ड पर्सन में आप लिखें, क्लियर, समरी। और समरी में ये नहीं करना, समरी में आपको वर्ब यूज करना, समरी में आप वर्ब यूज करेंगे, यहाँ वर्ब का यूज नहीं करना, क्लियर। अभी कोई डाउट पूछ लो। ये यदि आप करके आते हो तो 8 में 5 to 6 मार्क्स आप गेन करेंगे, एनी हाउ, इतना दे लगेगा, ठीक है, कोई डाउट, थैंक यू।